آج 7 ذوالحجہ ہے۔ حج افراد اور حج تمتع والے حج کا احرام باندھیں، ہو سکے تو مسجد الحرم میں آئیں یا اپنی بلڈنگ میں بھی 2 رکعت نفل احرام کی پڑھیں۔ افضل یہ ہے کہ آپ مسجد الحرم میں آئیں، 2 رکعت نفل ادا کریں، پھر اس کے بعد حج کی نیت کریں۔ حج افراد اور حج تمتع کی نیت ایک ہی ہے۔ اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی وأعني عليه وبارك لي فيه نويت الحج وأحرمت به لله تعالى۔ پھر اس کے بعد مرد حضرات 3 مرتبہ زور سے اور عورتیں آہستہ تلبیہ پڑھیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ پھر اس کے بعد جیسے ہی آپ نے تلبیہ پڑھی، اس کے بعد ایک آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ ایک نفلی طواف کر لیں۔ نفلی طواف میں استباء کریں، کندھا کھلا رکھیں، پھر اس کے بعد رمل کریں 3 چکر، 4 چکر نارمل چلیں، پھر اس کا مقام ابراہیم پاس جائیں، پھر ملتزم پاس جائیں، واجب الطواف نماز پڑھیں، پھر ملتزم پاس جائیں، پھر آب زمزم پیے، اس کے بعد صحیح کریں۔ اب حج تمتع والے، حج افراد والے، حج افراد کا یہ طواف قدوم کہلاتا ہے اور حج تمتع والوں کے لیے نفلی طواف کہلاتا ہے۔ اب تینوں کے لیے حج تمتع، حج افراد اور حج کرام، تینوں کے لیے طواف زیارہ میں آپ کو رمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی استباء کریں اور نہ ہی صحیح کریں۔ پھر اس کے بعد آپ آج رات کو مینا آپ کو آپ کے ہوٹل والے بس کے ذریعے سے لے جائیں گے۔ جیسے ہی مینا نظر آئے یہ دعا پڑھیں، اللہم حاذہ منن فمن علی بما مننت بہ علی اولیائک۔ آج 8 ذوالحجہ ہے، ہم مینا کو تشریف لائے ہیں۔ یاد رکھیے مینا میں ظہر کی، عصر کی، مغرب، عشاء اور فجر، یہ 5 نمازیں مینا میں آپ کو پڑھنا ہے 8 تاریخ۔ اور آج رات شب عرفہ ہے، آج رات خوب کثرت سے دعائیں کیجیے، خود تسبیح کیجیے، گناہوں سے بچیں اور یہ دعا کیجیے، یا اللہ ہمیں حج مبرور عطا فرما۔ حج مبرور حدیث پاک میں آتا ہے، حج مبرور کا ثواب جنت ہی ہے۔ آج 9 ذوالحجہ ہے، ہم نے مینا میں فجر کی نماز ادا کی تھی، پھر جیسے ہی سورج طلوع ہوا پھر ہم عرفات کی طرف نکلے۔ آپ کے معلم آپ کو بس کے ذریعے سے مینا سے عرفات لے جائیں گے، لیکن افضل یہ ہے کہ آپ پیدل چلیں۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ ہم عرفات کے میدان میں آ چکے ہیں، ہو سکے تو غسل کریں یا کم از کم وضو تو کر لیں۔ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ، ہم جبل رحمہ کے پاس آئے ہیں۔ یہ جبل رحمہ ہے، تو یہاں پر بہت زیادہ بھیڑ ہوتا ہے، یہاں پر آپ آ بھی سکیں یا نہ آ سکیں، آپ کے معلم تو آپ کو اپنے خیموں پر پہنچا دیں۔ ہو سکے تو یہاں آئیے، افضل ہے، نہیں تو اپنے خیموں میں ہی ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں، عصر کی نماز عصر کے وقت میں ادا کریں۔ اس کے بعد دھوپ میں ٹھہر کر ہاتھ پورے اوپر اٹھا کر اللہ سے بے حساب دعا مانگیں۔ یاد رکھیے، ظہر سے لے کر کل صبح یعنی 10 ذوالحجہ کی صبح صادق تک جو بھی احرام کی حالت میں عرفات کے میدان میں رکا، اس کو حاجی کہتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، آج کے دن کان، آنکھ اور زبان قابو میں رکھو، جو قابو میں رکھیں گے ان کی مغفرت ہوگی، اور مبارک ہو آج کے دن آپ کو آپ کے گناہ ایسے معاف ہو جائیں گے جیسے آپ نے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا کیا۔ پھر اس کے بعد جیسے ہی غروب آفتاب کا یقین ہو جائے، سورج غروب ہونے کا یقین ہو جائے، مزدلفہ کی طرف روانہ۔ آپ کو بس کے ذریعے سے بھی لے کے جایا جائے گا، لیکن پیدل سفر کریں افضل ہے۔ یہاں پر یاد رکھیے، میدان عرفات میں مغرب کی نماز نہیں پڑھنا ہے،
मुज़दलिफ़ा में जाकर मगरिब और इशा की नमाज मिलाकर पढ़ना। उसका तरीका ये, अगर जमात से कर रहे हैं तो एक अजान दें और एक इकामत कहें, फिर उसके बाद मगरिब की फर्ज पढ़े, उसके बाद इशा की फर्ज पढ़े, फिर उसके बाद मगरिब की सुन्नत पढ़े, फिर इशा की सुन्नत, उसके बाद वाजिब वितर पढ़े। अकेले तन्हा पढ़ रहे हैं तो अजान और इकामत देने की जरूरत नहीं है। अब फिर हम मुज़दलिफ़ा की तरफ चलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुज़दलिफ़ा को आ गए हैं। पहले हम यहाँ मगरिब और इशा की नमाज मिलाकर पढ़ेंगे, फिर 70 से ज़ायद कंकरियाँ चुनेंगे। ये इस वजह से अगर हमने 12वीं के गुरूब आफ्ताब से पहले मीना की हुदूद से नहीं निकले तो 13वीं को भी रमी करना होगा। फिर ये कंकरियों को अच्छे से धो लेंगे, फिर कुछ देर यहाँ आराम करेंगे, फिर ताज्जुद को उठेंगे, फिर दुआएं करेंगे। याद रखिए मैदान अरफात में हुकूकुल्लाह माफ़ हुए थे, यहाँ पर हुकूकुल इबाद माफ़ होने का वादा है। यानी हमने जो कोई इंसान का दिल दुखाया था, कल क़यामत में अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल उनको कहेगा ये बंदे को माफ़ कर दे, तो वह बंदा माफ़ कर देगा। सुबह सादिक से लेकर तुलूब आफ्ताब तक के बीच में यहाँ रहने वाले को वक़ूफ़ मुज़दलिफ़ा कहते हैं। तो बहुत से हजरत क्या करते हैं, नमाज जल्दी जल्दी फजर की पढ़ लेते हैं, यहाँ तक कि फजर का वक्त हुआ ही नहीं रहता। तो ऐसे लोग जो सुबह सादिक से पहले ही निकल जाए यहाँ से, उन पर दम वाजिब होता है। बिला अज़र निकले तो उन पर दम वाजिब होगा। हमने रात को ही कंकरियाँ उठा ली थी, 70 से ज़ायद कंकरियाँ उठा ली थी। याद रखिए कंकर इस तरह से साइज वाली उठा ली थी हमने, खजूर की गुठली के मानिंद, वो आपके पत्थर हो, ना ही बड़े हो ना ही छोटे हो, खजूर की गुठली के मानिंद आप रात को ही हमने चुन लिया था। फिर अब मुज़दलिफ़ा से आपको कोई बस नहीं मिलेगी, आपको मुज़दलिफ़ा से सीधा जमरात की तरफ आपको पैदल जाना पड़ेगा। आपको मैं बता दूं कि जमरात की तरफ जब जाएंगे हम लोग तो 8 कंकरियां ये लेफ्ट हैंड में लेना है बॉटल से, उल्टे हाथ में लेना है। फिर इस तरह से पकड़ेंगे, याद रखिए इस तरह से पकड़ेंगे। और आज के दिन 10 ज़ुल्हज्जा है, आज के दिन रमी सिर्फ छोटे शैतान को नहीं, मंझले शैतान को नहीं, बड़े शैतान को मारना है। जैसे ही आप जमरात की तरफ जाएंगे तो पहला आपको एक पत्थर दिखेगा, वो छोटा शैतान है, उसके बाद मंझला शैतान, उसके बाद बड़े शैतान को मारना है। इस तरह से पकड़े, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर करके कंकर मारे। इसी तरह से 7 कंकर मारिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम जमरात को पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर हमने कल मुज़दलिफ़ा से हमने रात को कंकरियाँ चुन ली थी 70 से ज़ायद। तो इस वजह से था क्योंकि अगर कोई कंकरी पड़ जाए तो हम उसको उठाए ना, तो दूसरी कंकर ले लें। इस वजह से हम यहाँ पर आए हैं। तो फिर ये कंकरियाँ उल्टे हाथ में 8, 9, 10 को ज़ायद ले लें। ये इस वजह से क्योंकि अगर पड़ जाए तो आप उसको दोबारा ना ले लें। फिर आप जमरात की तरफ चलें। आप यहाँ देख सकते हैं ये छोटा शैतान है, इसको आज रमी करना नहीं होता है, इसको 11-12 तारीख को रमी करना होता है। फिर ये मंझला शैतान है, आप देख सकते हैं, इसको भी रमी नहीं करना है, ये 11-12 को करना रहता है। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं बड़ा शैतान आएगा, तो इसको 7 कंकरियां मारनी होगी। इसका वक्त जुलूब आफ्ताब से लेकर गुरूब आफ्ताब से पहले ही कर लें। अगर कोई मजबूरी ना हो तो गुरूब आफ्ताब से पहले कर लें, अगर मजबूर हो तो सुबह सादिक तक चल जाएगा। अगर कोई मरीज है, अगर यहाँ पर आ नहीं सकता तो किसी को दे दे, वो पहले अपनी रमी करे फिर वो मरीज की करे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 8 ज़ुल्हज्जा को यहाँ पर आए थे। ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, फजर की नमाज पढ़ी थी। हाँ, थोड़े मोहल्ले गड़बड़ किए थे, जल्दी किए थे। इशा के बाद ही अरफात की तरफ रवानगी हुई थी, लेकिन कोशिश ये कीजिए कि फजर की नमाज मीना में पढ़े। नहीं हो सका तो आप अरफात की तरफ जाएं। फिर हमने अरफात की तरफ गए, फिर वहाँ पर ज़ोहर और असर की नमाज पढ़ी थी। फिर उसके बाद मगरिब की नमाज और इशा की नमाज मिलाकर मुज़दलिफ़ा में पढ़ी थी। वहाँ से कंकरियाँ चुने थे। फिर उसके बाद जमरात की तरफ गए थे। जमरात बड़े शैतान को हमने 7 कंकरियाँ मारी थी। अब फिर मीना की तरफ आए। अब मीना की तरफ आकर आपने जिसको पैसे दिए हैं कुर्बानी के लिए, उनको फोन लगाएं और कहें कि हमारी कुर्बानी हो गई है या नहीं, तो वो शहादत देंगे कि हो गई है।
अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हलक हो गया। जैसे ही हमारी कुर्बानी हुई थी हमने हलक कर लिया। हलक या तकसीर। औरत जरूरी बात याद रखें, इस्लामी बहनों को सिर्फ तकसीर करना है, यानी एक कोरा या एक कोरे से जायद कट करना। इसका आसान तरीका यह है कि अपनी चोटियों को सामने ले लें और कैंची से एक कोरा या एक कोरे से जायद कट कर दें। ये इस्लामी बहनों की तकसीर है। अब आप अहराम की पाबंदियां आप पर खत्म होती हैं सिवाय एक चीज के, अपनी बीवी से सोहबत नहीं कर सकते जब तक आप तवाफ ज़ियारा ना करें। हम तवाफ ज़ियारा के लिए आज मस्जिदुल हरम जाएंगे। आज 10 ज़ुल्हिज्जा है। आज हमने सबसे पहला काम रमी किया था, बड़े शैतान को कंकरियां मारी थी, फिर उसके बाद कुर्बानी की थी, फिर उसके बाद हलक या तकसीर किया था। अफजल ये है 10 ज़ुल्हिज्जा को हम तवाफ ज़ियारा करें। 11, 12 को भी कर सकते हैं, लेकिन 12 की सूरज गुरूब होने से पहले ही आप तवाफ ज़ियारा करें, वरना आप पर दम वाजिब हो जाएगा। हाँ, अगर औरत नापाक है, हैज़ की हालत में है, तो पाक होने के बाद वो तवाफ ज़ियारा कर सकती है, इस पर कोई दम वाजिब ना हो। हमने हज तमत्तु में एक नफिली तवाफ किया था। हज का अहराम वो नियत बांधने के बाद एक नफिली तवाफ किया था। उसमें हमने इस्तवा किया था, यानी एक कंधा खुला रखा था और रमल किया था, पहलवान की चाल चले थे। फिर उसके बाद हमने सही किया था। तो अब हज तमत्तु वाले तवाफ ज़ियारा में सिर्फ तवाफ करेंगे और मुकाम इब्राहिम पास जाकर नमाज पढ़ेंगे वाजिब तवाफ की, फिर मुल्तज़म पास जाएंगे, फिर आब ज़मज़म पिएंगे। आप पर सही नहीं, क्योंकि आपने सही से फारिग हो चुके हैं। अगर और नफिली तवाफ भी नहीं किया था तो आप तवाफ ज़ियारा में इस्तवा करें और रमल भी करें। इस्तवा की तो कोई ज़रूरत ही पेश ना होगी, क्योंकि हम सिला हुआ कपड़ा पहनेंगे। आप रमल करें, फिर उसके बाद मुकाम इब्राहिम पास नमाज पढ़ें, फिर उसके बाद मुल्तज़म पास जाएं, फिर उसके बाद सही करनी होगी अगर आपने पहला नहीं किया होगा। आज 11 ज़ुल्हिज्जा है। आज के दिन ज़ोफ़हर के यानी ज़ोहर के बाद से लेकर मगरिब से पहले आप पहले छोटे शैतान को सामने जो है वो, उसके बाद उसके आगे वाले यानी मंझले शैतान को, फिर उसके बाद बड़े शैतान को 7 कंकरियां मारना है। आज 12 ज़ुल्हिज्जा है। आज के दिन जिस तरह से आपने 11 ज़ुल्हिज्जा को कंकरियां मारी थी तीनों शैतान को, उसी तरह से आज भी 7 कंकरियां छोटे शैतान को, फिर उसके बाद मंझले शैतान को 7 कंकरियां, फिर उसके बाद बड़े शैतान को 7 कंकरियां मारना है। और याद रखें, गुरूब आफ़ताब से पहले ही मीना के हुदूद से बाहर निकल जाएं। अगर आप मीना के हुदूद से बाहर नहीं निकले, गुरूब आफ़ताब हो गया, तो आपको 13वीं की रमी भी करनी होगी, यानी 13वीं को ज़ोहर के बाद आपको फिर से छोटे शैतान, मंझले शैतान और बड़े शैतान की रमी करनी होगी, कंकरियां मारनी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमने 8 ज़ुल्हिज्जा को मीना तशरीफ ले गए थे। वहाँ पर ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा और फजर की नमाज अदा की थी। और जैसे ही सूरज तुलुब हो गया था, हम अरफात के मैदान की तरफ चले थे। लब्बैक की खूब कसरत करते हुए चले थे। और जैसे ही हम जबल रहमा के पास आए, वहाँ पर भी दुआ की। फिर वहाँ पर हम अपने खैमों की तरफ चले गए। फिर वहाँ पर ज़ोहर की नमाज अदा की, वहाँ पर असर की नमाज अदा की। फिर मुज़दलिफ़ा की तरफ रवानगी हुई, वहाँ पर मगरिब और इशा की मिलाकर नमाज पढ़ी। और फिर हमने कंकरियाँ चुनी, वहाँ पर दुआएँ की। फिर उसके बाद सुबह को सही वक्त पर हमने फजर की नमाज अदा की। उसके बाद जैसे ही तुलूब आफ़ताब हो रहा था, हम मुज़दलिफ़ा से जमरात की तरफ रवानगी हुई। हमने कंकरियाँ उठाई थी। उस दिन हमने सिर्फ पहले दिन 10 ज़ुल्हिज्जा को हमने सिर्फ बड़े शैतान को कंकरियाँ मारी थी। फिर जैसे ही हमने कंकरियाँ 10 ज़ुल्हिज्जा को मारी थी, फिर हम वापस मीना की तरफ गए थे। वहाँ पर हमने अपने कुर्बानी करने वाले एजेंट को फ़ोन किया था। उसने शहादत दी कि आपकी कुर्बानी हो गई। फिर हमने हलक कराया था। फिर उसके बाद हमने मीना से फिर मस्जिदुल हरम की तरफ आए थे तवाफ़ ज़ियारा के लिए। फिर तवाफ़ ज़ियारा किया, फिर हम मीना की तरफ गए थे। फिर 11 ज़ुल्हिज्जा को ज़ोहर के बाद हमने
तीनों शैतानों को, छोटे शैतान, मंझले शैतान और बड़े शैतान को 7 कंकरियां मारी थी। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर तीनों को 7 कंकरियां मारी थी। फिर उसके बाद 12वीं ज़ुल्हज्जा को भी ज़ोहर के बाद हमने तीनों शैतानों को कंकरियां मारी थी। और जैसे ही गुरूब आफ्ताब हो रहा था 12वीं का, हम उससे पहले ही हम मीना की हुदूद से बाहर निकल गए थे। फिर जैसे ही हम वहाँ से निकले, अब एक रुकन हमारा यानी एक काम हमारा बच गया, और वो है आखिर में तवाफ़ रुख़सत। जैसे आपा की हाजी पर वाजिब है कि तवाफ़ रुख़सत करे, अगर वो ना करेगा तो उन पर दम वाजिब है। आपा की हाजी उसको कहते हैं जो मेकात की हुदूद से बाहर से आया हुआ है, जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान वाले आते हैं, वो तवाफ़ रुख़सत करना वाजिब है। हाँ, अगर कोई औरत हाइज़ में है, नापाकी की हालत में है, तो वो तवाफ़ रुख़सत ना करे तो उस पर कोई दम वाजिब नहीं। तवाफ़ रुख़सत का तरीका ये है, उसमें इस्तवा नहीं है, यानी कंधा खुला नहीं रखना है, उसमें रमल नहीं करना है और ना ही उसमें सही करना है। बस आप इसको तवाफ़ करें, फिर उसके बाद मुल्तज़म पास जाएँ, फिर उसके बाद मुकाम इब्राहिम पास जाएँ, फिर वाजिब तवाफ़ नमाज अदा करें, फिर आब ज़मज़म पिएं। ये आपका तवाफ़ रुख़सत हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, मुबारक हो, आपके हज के तमाम अरकान सुन्नत के हिसाब से पूरे